to maintain yourself. That could be a good one. But as per, why do you think that as per now, like the generation that we are going through, why do you think we need fitness more than we needed it 100 years before or 200 years before? World is more transparent today. Yeah. I guess to be more active because we are sitting, studying, ये ज़्यादा थोड़ा है अब तो I guess more activeness, right भूमिका? और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है तो लोगों पे वर्कलोड इंक्रीज होता जा रहा है जिस वजह से वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे. सो इट कुड बी अ रीज़न कि एक इंसान अपने ऊपर भी मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो अपने ऊपर ध्यान दे सकता है. मैं ये मानती हूँ. हाँ, that's why fitness should be like awareness होनी चाहिए इसके बारे में. Any obstacles you face in your daily life? मेजरली कुछ जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए टाइम हो सकता है. As per you guys. Students. Yeah. You're a student, right? Yeah. To rush for attendance, I guess we need to That be would be fit, the right? one. Number one भाई है. दूसरा हो सकता है. Number You know, maintaining a good timetable could help this. Right. to be more If you're looking for a productive. solution, yeah. I would add one point to this. Our mobile phones. Or maybe laptop, just the digital Screen things. time you are saying. I'm talking about the instant dopamine that we are getting. Instagram. We're just scrolling, it's just like that. It makes us Yeah. lazy and we really don't have We that just energy. want to sit and scroll Yeah. every time. The thing is, if we look at the short term thing, it's really good for us. If we see the long term, it's like it's gonna be vain. Why? Let's say I'm using Instagram right now, I'm just scrolling reels for 2 hours. What I'll do next? Maybe sleep. Because Yeah. I don't have the energy that now I would go do push-ups and all that. I'm like, So basically relax. it depends on us. It Like depends on we how want you. Yeah. to be fit or not. Depends Correct. on your mindset. We all want to be fit. We all want to be fit, but who have the courage to step forward, step out of their comfort zone, and then do it. The मुश्किल सबसे ज़्यादा tough task is to step out of your comfort zone. I agree That on is- that. Yeah. So मुझे जैसे तुमने बोला कि तुम वर्कआउट वगैरह करते हो तो तुम्हारी क्या फेवरेट एक्सरसाइजेज है? बेसिकली करते हो? फेवरेट एक्सरसाइजेस तो मेरी आर्म्स है. एब्स. यस, एब्स अच्छा. है. फिर जैसे क्रंचेस वगैरह हो गए, हाँ. राइट. सारे उसके फॉर्म्स वगैरह, पुशअप्स चेस्ट के लिए हो गए. Those are the ones which are really favorite. अच्छा. बाकी ये एक्सरसाइजेस तो हम नॉर्मल अपने घर पे भी डेली बेसिस पे कर हाँ, सकते मैं हैं. वो लाइक workout वी नहीं करता. बेसिकली डोंट नीड जिम फॉर दैट. हाँ तो दैट्स गुड. अबे स्प्रिंट भी अच्छा होता है उसके लिए. रनिंग, जॉगिंग. You do it, Raghav, right? Yeah. और फिर उसके लिए फिर हमें प्रॉपर जैसे कि टाइम Proper. चाहिए. टाइम क्यों चाहिए स्प्रिंट हाँ. के लिए? मैक्सिमम 15-20 मिनट ही तो चाहिए. दिन के 15-20 बट मिनट आप निकाल घर में ही नहीं सकते जा हैं. सकते. घर में थोड़ा बाहर तो घर से पार्क कितना दूर है? जाना पड़ेगा ना. वैसे Please, Raghav, what do you yeah. prefer? Running morning में ज़्यादा इफेक्टिव Morning. रहती है. Morning. Morning है Fresh ना? होके- Fresh fresh up होके थोड़ा निकलो. सा हो जाता है. वो ज्यादा सही है. एक कॉलेज के बाद फिर ना ज्यादा वो एनर्जी भी नहीं बचती. नहीं बचती हाँ. है. और वैसे भी हम Exhausted इतना ज़्यादा हो जाते हैं. हैं. तो क्या ही एनर्जी बचेगी. What तेरी- do you do, Bhumika? आई डू योगा मॉर्निंग या सुबह. वही वाली बात है ना, शाम को तो टाइम फिर ऐसे ही रहता है. तू आप क्या करती है exhaust- वैसे? मैं पिलाटेस करती हूँ. और तू सारे स्प्रिंट जिम की बोली ना हमने. गाली अरे ये हो जाएगा. काट देंगे. बंद मत कर. हाँ बस. वापस से यही रिपीट किसी से सुबह उठा नहीं जाता तुम जॉगिंग मैं करता हूँ रोज. थोड़ी इसको जैसे जिम आया इसने योगा के बारे में थोड़ा सा बोल और मुझे बोलने का मौका ही नहीं जो दिया. मैं बोलूंगा बे. चलो, ठीक है. अरे तो उसके बाद एक बार ना थोड़ा सा बोलने देना, ठीक है? यही चीज दोबारा से शुरू पंखा तो साइड में. चलो किससे स्टार्ट करना है? भूमिका से. योगा वाला मैंने पूछा था ना. दोबारा चल शुरू. हाँ बोलो. योगा में मतलब कितना देर कर लेते हैं? मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर. उतना ही फिर सुबह ना Yeah. टाइम होता है मेरे पास ओके. तो मैं हाफ एन आवर ही करती हूँ. हाफ एन आवर सही टाइम है यार ये तो. हाँ. सही है. मतलब- प्रेक्षा तू? पहले मैंने स्टार्ट 15 मिनट से किया था बट अब मैं धीरे धीरे उसको इंक्रीज करके अब मैं हाफ एन आवर पे लाई हूँ. तो तुझे What's ये your- प्रोग्रेस मतलब कैसी फील? मतलब इससे ना पहले यूजुअली क्या होता था
कि मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब कब मैं तो देख सकता हूँ आगे। ठीक है चल देखो पॉडकास्ट बट जब से मैंने यार यार क्यों बात कर रहे हो कैमरा कुछ नहीं है। टीवी खोल के लैपटॉप के कितनी angry पहले है। मैं मोटी थी फिर मैंने ये शुरू किया। बेस्ट Damn. फिट Like, टॉप पहले नहीं है। पहले मेरे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थे, तो जब से मतलब मैंने योगा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें सीखी भी, तो जब से मैंने वो चीज़ें स्टार्ट करी हैं तो धीरे धीरे मुझे कामनेस आने लगी है मेरे अंदर कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो पॉजिटिव चेंज आ गया। या तो ये चीज़ व्हाट वाज योर मोटिवेशन हुई था? मोटिवेशन एक कोई चीज Why? तो जिसने सुबह उठाया होगा कि यार जैसे जिम योगा जाना, करना भाई ही बंदी है। से ब्रेकअप हो गया, चलो जिम चले जाते हैं। हाँ। नहीं योगा ऐसा Anger issues, हाँ, right? हाँ। ऐसा तो मेरा कुछ नहीं था। मैंने फिर फैमिली में डिस्कस किया ये चीज़, तो उन्होंने बोला कि तुम मेडिटेशन या फिर कुछ योगा एंड ऑल Experience with करो। family. Correct. हाँ, it's तो good. मेडिटेशन से मतलब मैंने मेडिटेशन हाँ तो उससे ज्यादा योगा योगा इफेक्टिव, क्योंकि मेडिटेशन ऐसे एकदम से स्टार्ट करना थोड़ा सा Correct, टाइम correct, कंज्यूमिंग correct. तू होता बड़ा है। हो गया करता स्प्रिंट भाई। अबे जा। अबे चल पागल है सब करते हैं? सुबह सुबह। हाँ जरूर उठा जाता है। हाँ सीरियसली राघव, अबे सीरियसली हाँ, जरूर उठते ही नहीं भाई तू। अच्छा देखो कॉल कर दिया करूंगा स्प्रिंट से। इसको भी उठा दियो है ना। यू नीड ये यू तो गो आज टू ही जिम है। व्हेन मैं तो इवनिंग या खत्म हो मॉर्निंग? जाऊंगा, स्प्रिंट हो जाता नहीं वैसे जिम इवनिंग या मॉर्निंग? मॉर्निंग। हाँ तो इसको उठा हाँ तो दियो। मॉर्निंग में स्प्रिंट मैं भी जाता हूँ। तो राघव कैसे फील हुआ? मैं ये चीज अच्छा feel सोचती हूँ कि लाइक आई एम अ योगा पर्सन, बट जो जिम वाले होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। हाँ ऐसा मुझे भी Stiffness आ ऐसा जाती कुछ है। है। इट्स ट्रू यस। या इट्स तो तो कहीं मतलब ना मैंने कहीं बहुत लोग मुझे देखे ये वो चीज़- इससे पीछे हाथ नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये वाली चीज लगती है कि बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं। ये कितनी सस्ती एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग। कसम से यार उसमें साफ दिख रहा है कि तू एक्शंस ले रहे है। मैं वो ये बोलना सब ऐसे बैठ जाओ 2 3 गो। गाइस मेरे को वैसे एक चीज पूछनी थी तुम लोगों से कि लाइक आई एम अ योगा पर्सन, बट मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग जिम करते हैं उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और लाइक प्रॉपर जैसे फ्लेक्सिबल जो बॉडी होती है ना वो बॉडी रहती देख नहीं। ये मिसकंसेप्शन होता है। मैं चीज बताता हूँ। जिम इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। अच्छा फर्स्ट एक हो गया तुम्हारा कैलिस्थेनिक्स, दूसरा हो गया बॉडी बिल्डिंग। Correct. कैलिस्थेनिक्स में उसमें स्टिफनेस से कुछ नहीं होता, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल अच्छी रहती है। अच्छा इफ यू टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग तो उसमें आपका स्टिफनेस आती है। ये वैसे Okay. प्रॉब्लली जिम का एक वो हवा बना रखा होता है ना कि जिम इज लाइक सारे बॉडी बिल्डिंग समझते हैं, बट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं होता। अब ये देख लो जिम जा रहे हैं बॉडी बनी नहीं, लेकिन जिम जा calisthenics रहे में राघव। तो फ्लेक्सिबल ज्यादा है। ओके इसी बंदी को ये लाइन मारती है। So like it's a type of a myth कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो जिम जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ है। हाँ हाँ मतलब it Depend depends करता है। कि Body what building kind of हाँ, workout you बॉडी are टू बॉडी preferring, डिपेंड body करता to है। body और बॉडी क्या टू बॉडी डिपेंड workout। करता है। एक की बॉडी पर अलग इफेक्ट ही आएगा। लाइक मेरा ऐसा फ्रेंड है जो जिम भी जाता है और वो डांस भी करता है। अच्छा बैलेंस हो गया ना मतलब। आई थिंक कि जो लोग ऐसे वेट लिफ्टिंग करके जिम में जाके जो घर पे सिर्फ बैठ जाते हैं ना उनकी बॉडी ज्यादा स्टिफ Yes. रहती है। व्हाट यू गाइस थिंक? वो पीछे से हाथ हाँ ऐसे हाथ नहीं जाते हैं पीछे, रियली इट्स लाइक मेरे भी बहुत सारा नोन में उनका पीछे हाथ नहीं जा पाता और वो बेंड भी नहीं कर पाते। हाँ दैट्स जैसे द वो फैक्ट। टेक्निक मतलब क्या होता है उनको परेशान करने का, कुछ भी तुम स्टिक की साइड कुछ भी तुम उसके पीछे चिपका दो तो वो उसके बंदा हाथ तू ही है वो इंसान जो करता है। तू ही इंसान ओह, है। अच्छा, अच्छा हाँ, idea, अच्छा आइडिया, अच्छा अच्छा idea. आइडिया। बट We स्टिल will ऐसे try परेशान our नहीं करना चाहिए So guys। guys चलो ठीक है हम करते हैं। क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जिसको इस चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया हो। आई गेस सो राइट। हमें हाँ। ऐसे है ना? किसी इंसान से थोड़ा आइडिया लेना क्योंकि- चाहिए अबाउट मोर अबाउट जिमिंग Correct. एंड किसी एक्सपर्ट से पूछो। प्रॉपर नॉलेज हो क्योंकि इन चीजों के हाँ, बारे में। आई थिंक कि आजकल जो सबने फिटनेस का एक मोटो या पूरा एजेंडा बना रखा ना, दैट इज द जिम। देखो मेरा पर्सनली मानना ऐसा नहीं है, बिकॉज आई डू पिलाटीज एंड दैट्स रियली वेरी इफेक्टिव। क्योंकि इट इज लाइक कि वो बहुत स्लो फॉर्मेशन में होती है, तो एक एक मसल या एक एक जो वी कैन से पेन या कुछ भी है, दैट इज रियली मतलब फील होता है सब कुछ। तो ऐसा कुछ है, तो लेट्स सी इज दिस करेक्ट, इफ दिस इज करेक्ट और नॉट कि फिटनेस इज ओनली जिमिंग और समथिंग।
जो लोग ऐसे बहुत मसल फ्लेक्स करते हैं और समथिंग, तो लेट्स चेक ऑन दैट कि इफ इट इज ट्रू और नॉट, राइट? व्हाट यू गाइस थिंक? It's worth a shot. A few moments later. So hello guys, now we have two of the most influential people on our podcast, and this is Ram and he's Dhruv. So could you just introduce yourself to the audience? Hi, Dhruv this side. So I'm from AIT department and I started my fitness journey like 1 year ago when like मेरे boards खत्म हुए थे, and basically मेरा main source of motivation ये था कि मेरे को स्कूल में एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, तो वहाँ से मोटिवेशन मिली थी और ये सब शुरू हुआ. That's really honest. That's good. And Mr. Ram? So I'm Ram, I'm pursuing LLB, it's my final year. So I started working on it in 2017 and it's been 5 to 6 years on and off. I'm considered towards my workout and trying to be more consistent and trying to be more active. So I started off my journey like I admire my brother a lot. He used to work out and I used to look really good. So काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलती थी भाई को देख के कि यार he look exceptional among the many people out there, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करा और मैंने अपनी फिटनेस जर्नी वहाँ से स्टार्ट की. नहीं करे पोस्ट की. That's really great. So, Ram and Dhruv, I want to know कि like how you keep yourself doing this workout. Like बहुत मुश्किल होता होगा कि on and off वैसे भी college की timings and everything, and it is like कि या मेरा मन नहीं है या I am out of the motivation. Like how you cope up with that? Yeah, indeed, I totally agree. मतलब प्लस स्टार्टिंग में क्या होता है मैंने स्टार्ट वर्किंग ऑन तब तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती क्योंकि भाई हम जिम जाते हैं वहाँ पे हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग दिखते हैं जो हमसे काफ़ी ह्यूज दिखते हैं, बल्कि लीन एस्थेटिक्स एंड एज वेल जो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है यार दे आर बेटर देन अस. बट द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी तब वो फ्रेज आता है कि यार यू गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर वर्कआउट एंड यू फील लाइक यार मैं रोज़ जिम जाऊँ, रोज़ वर्कआउट करूँ. बट स्टार्टिंग का फेज थोड़ा मुश्किल होता है, वो थ्रू ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि इसे बस ज़्यादा एक साल ही हुआ है, तो ये फेज अच्छे से बता पाएगा एक बार. शुरू में मोटिवेशन तो नहीं होती, लाइक बेसिकली डिसिप्लिन होता है पूरा. तो लाइक आप जाते हो बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. ऐसा नहीं है इंस्टेंटली बॉडी एकदम ग्रोथ हो जाए. मैं पहले बहुत स्किनी था, अब मेरे में थोड़ा चेंज आया, मेरे को 1 साल हो गया. तो मोटिवेशन थोड़े टाइम बाद ही आता है जब दिखता है कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों से. अब मेरे को लाइक शुरू के टाइम में कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता था, अब मेरे को धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट मिलता है. आज भी सुबह मिला बेसिकली. पर रैंडम का अप्रोच से So we can say कि compliments help to motivate, you know, compliments help you to
यार इंडिया में पता है जिम का एनवायरनमेंट ना ऐसा होता है, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। ये नहीं कि यार तुम जिम जा रहे हो, कोई स्किनी बच्चा उसको बहुत ज़्यादा कोई बुली करेंगे या कुछ भी, बट लाइक हाँ मैं एक्सपीरियंस गया है तो मैं भाई अगर मुझे दिख रहा है वो कुछ गलत कर रहा था, I'm gonna help him out कि भाई you are doing this wrong, do this correctly, right? तो वो एनवायरनमेंट एक टोटली डिफरेंट, और एक तुम जिम से बाहर निकलोगे देखो no one's gonna help you out That's the new concept, I guess. and वर्कआउट शेड्यूल। तो भाई डाइट का क्या है, डाइट तो कॉलेज में नॉन वेज इज नॉट अलाउड एज वेल, Yeah. so sometimes we do carry our diet and some कहीं बाहर जाके हमने कुछ खा लिया, चिकन खा लिया एंड बॉइल्ड एग ले लिए, एंड आफ्टर गोइंग आउट फ्रॉम कॉलेज लाइक 5 बजे जहाँ से हम ऑफ होते हैं, देन एक बार हमने रेस्ट लिया घर जाके, कार्ब्स इनटेक करे। इनको तो रेस्ट नहीं मिल जाता, मेरे को नहीं मिलता। No, ऐसा नहीं 9 to 5 अब क्लासेस है, मैं डांस में भी हूँ। Oh, okay. तो आपका मैं अलग चलता होगा। डांस की प्रैक्टिस 5 बजे के बाद से होती है। कल 11 बजे रिकॉर्ड करना था जिम में, 11 बजे मैं जिम में था, सोचो कई बार 12 साढ़े 12 घर पहुँचता हूँ मैं। That's discipline. Yeah, discipline that's बट दैट्स व्हाट आई टॉकिंग अबाउट ना कि भाई अगर एक बार तुम्हें मोटिवेशन मिल गई, यू सी चेंजेस इन योर बॉडी, तो भाई तुम नहीं रुकोगे वर्कआउट के लिए, तुम कुछ भी हो जाए, इफ यू आर बिजी होल डे तब भी, लेकिन अगर तुम 9-10 बजे फ्री होगे ना तो यू आर गोइंग टू द जिम। like it's gonna be part कि हाँ मुझे इसको हाँ। कंप्लीट करना ही करना है। एग्जैक्टली, और मतलब जिस दिन तुम्हारा वर्कआउट स्किप होएगा यू आर गोइंग टू फील इनकम्प्लीट, सीरियसली बता। So you feel So incomplete. it's kind of a part of your life. Yeah. एक time you are. It's a part of our life and part of our routine. Without the gym, without doing the gym, our day is incomplete. गिल्ट में रह जाते हो बेसिकली, तो जिम नहीं आ पाया। Improvement नहीं हो पाएगी. It's not about improvement. देखो improvement पता है एक जिम का ही फेज होता है. You're not going to get improved day by day. There will be a phase you are going to see results. There will be a phase जब तुम्हें consistent result नहीं मिलेंगे. You're going to be downgrade as well. लेकिन ना but तुम रोज जिम जाओगे ना, तुम्हें एक हैप्पीनेस मिलेगी। जब we talk about happiness and calmness inside us. बेसिकली माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश हो जाता है वो। जो पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन होती है, जो जहाँ पे भी दिमाग खराब हो रहा होता है, वहाँ पे जाके तो तुम 1.5-2 घंटे जो जिम करते हो, तुम उन सब चीज़ों के बारे में फिर नहीं सोचते, तुम बेसिकली अपने बारे में, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। So it like affects your mental health positively. what you Exactly, say. yeah. I want to know that your sleep cycle and your workout cycle, मतलब sleep cycle की वजह से workout effect होता है, उसकी strength या ऐसा कुछ? Yeah, sleep cycles affects a lot. मतलब क्या होता है, देखो I talked about कि भाई पूरे दिन बिजी रह के हम जब रात में वर्कआउट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं हम कि डायरेक्ट जाके वर्कआउट करते हैं। वी डू यूज सम सप्लीमेंट्स लाइक हाई सोर्स ऑफ कैफीन, आई विल नेम वन प्री-वर्कआउट। उसमें क्या होता है बेसिकली इट कंटेन्स सम हाई सोर्स ऑफ कैफीन, यू समवेयर अराउंड 300-400 mg, और भी इससे ज़्यादा हैवी आते हैं। सो अगर आप रात के 9 बजे 10 बजे आप 300-400 mg कैफीन ले रहे हो तो ऑब्वियसली 12 बजे 1 बजे आपको नींद तो आने नहीं वाली। Personally guys, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मुझे तो कैफीन लेके बहुत नींद आती है। हाँ नहीं पता है क्या होता है, लाइक अ टॉक अबाउट कैफीन हैव्स टू लो फोकस एंड इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ। Okay. तो जिम मेडिसिन क्या होता है भाई, वो दिन में भी कॉफ़ी पी रहे दबा के, Oh. ठीक है। That's why all of them are around coffee places, right? I got that. Let's go. कॉफ़ी पीते हुए Yeah. कोई लड़की मिल गई आपके आ जाओ कॉफ़ी पे। We got the answer Another why motivation. all of the gym freaks are in coffee shops and coffee places. Yeah. अब हम किसी को नहीं बोलेंगे ऐसे, I have one okay? question, like I'm skinny and you were too. So how to build muscles and all that thing? बेसिकली मेरा वेट पहले इतना नहीं था, तो आई गेंड, तो वो गेनिंग करी एंड साथ में वर्कआउट होता था, तो वो मसल्स पे लगता था, फिर जो बॉडी फैट होता था वो कम हो जाता था, और जो मसल का जो फैट जो मसल्स का वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली फिर मैं तो बहुत पतला था, मैं तो थोड़ा गेन हुआ, तो कंटिन्यूसली हाँ इससे भी कम था। मैं आपसे भी पता है मैं आपसे भी It's a myth कहता कि ऐसे पतले लोग अगर जिम जाते हैं तो वो और पतले हो जाते हैं, और sometimes इट्स ऑल अबाउट मतलब डाइट प्लान आपका कैसे चल रहा है। बेसिकली इफ यू वांट टू गेन योर डाइट शुड बी हाई इन कार्ब्स एंड प्रोटीन। कैलोरीज
कैलोरीज आपको इनटेक बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाइक ट्वाइस राइस ऑफ योर बॉडी वेट एंड सेम फॉर द प्रोटीन एज वेल। और डाइट पे कंसिस्टेंट रहोगे, वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहोगे, वो डेफिनेटली गोइंग टू सी रिजल्ट्स। सो मेरा आप दोनों से एक और क्वेश्चन था, इससे आप दोनों के फिटनेस गोल अलग अलग होंगे, सो आप उसको मैनेज करने के लिए कैसे, मतलब एक होता है ना कि आपका फिटनेस गोल अलग है, इनका फिटनेस गोल अलग है, तो उसको अचीव करने के लिए आप कैसे, मतलब दिन में कैसे काम सी करते वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि आज की डेट में क्या हो रहा है, फिटनेस गोल्स इज लाइक कोई अगर नया बंदा जिम में आ रहा है ना, तो इज लाइक यार मुझे ना शिवम जैसी बॉडी बनानी है, मुझे इसकी जैसी बॉडी बनानी है यार, दैट इज़ नॉट समथिंग नेचुरली पॉसिबल। ठीक है, तो आज की फिटनेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, द यूथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रॉन्ग पीपल्स, लाइक ट्रेनर्स। आज के डेट में ट्रेनर्स की बहुत कमी है, ट्रेनर अच्छे नहीं होते। Okay. ठीक है। You have faced that problem too? As a beginner. Okay. but I am telling you from my past experience of 5 to 7 years, अगर आप कोई जिम में नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो मेंबरशिप लेता है, तो इवेंचुअली 1 महीने बाद 1 महीने के अंदर ही ट्रेनर कहेगा यार तूने सप्लीमेंट ले ले, तो वे प्रोटीन ले ले यार, तुम एटलीस्ट बंदे का पोस्चर ठीक कराओ, पहले उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप कराओ। आई एम नॉट सेइंग कि वे प्रोटीन इज बैड, आप रेगुलरली टेक वे प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ, एंड हमारी वे प्रोटीन, अगर वे प्रोटीन हम नहीं लेंगे तो हमारी डेफिनेटली प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूजुअली हमें 150 से 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरी करनी होती है, और कितना खा लोगे यार हाँ, कितना टाइम, सबसे कितना खा बड़ा लोगे? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी Exactly. रॉन्ग। तो वो हमारे टाइम को भी कंज्यूम लेस करता है, और भाई इजीली हम वी कैन टेक अराउंड 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन इन अ डे फ्रॉम वे प्रोटीन। लेकिन ट्रेनर्स क्या करते हैं भाई, वो गाइड कर रहे हैं यार तू 1 महीना हो गया तो प्रोटीन ले ले यार, उस बंदे का भी पोस्चर ठीक नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हुई है, मसल्स खुली नहीं है। इनिशियल डेज में बेसिकली कोई supplement इनिशियल डेज में नहीं एटलीस्ट उसे Okay. 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने यार तुम उसे नेचुरली ट्रेन करो विद द नेचुरल डाइट। स्टार्टिंग में तुम नेचुरल डाइट की ज़रूरत होती है, कोई तुम्हें सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल डाइट से यू कैन इंक्रीज योर मसल मास एंड वेट। तो और द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग वे प्रोटीन एंड सप्लीमेंट, नेचुरल, these all are natural supplement, वे प्रोटीन, I talk about creatine, pre-workout, so these all are natural supplements, but the moment you start seeing some result, तब बोलता है यार तेरा साइज रुक गया है, अब तू क्या कर, स्टीरॉइड स्टार्ट कर। एंड वो तुम्हें ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ तुम कन्विंस हो जाओगे द स्टीरॉइड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो थोड़ा मैनिपुलेट करके एग्जैक्टली। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यार उस बच्चे की फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। दो ही नो अबाउट साइड इफेक्ट्स, बट वो उसको गाइड नहीं करेगा भाई कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या है, और वो इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ें ले भी लेगा। इसे भी ये चीज़ फेस करने को मिली है, इससे ये बताएगा इसको। तो detail बता सकते हो? तो उसको एक्सपीरियंस हो गया ना, वो ऐसे लेना, लेट्स से आई डोंट गो टू जिम एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू जिम, सो डूज एंड डोंट्स। Like for a This is beginner, the- what yeah. you want to suggest? So basically, As per me. when I started my gym journey, like fitness journey, तो शुरू में 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया, I was clean। तो of course रिजल्ट बहुत धीरे आते हैं, एंड लाइक इंस्टेंटली जब आप सप्लीमेंट्स पे आते हो तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी दिखते हैं। बट जब मेरे को 1-2 महीने हुए थे, तो जो मेरा ट्रेनर था उसने मेरे को बोला था कि आप प्रोटीन लेना शुरू करो। तो आई वाज लाइक कि नहीं, 6 महीने तक मैं कुछ नहीं करूँगा, लाइक मेरे को अभी क्लीन रखना है ताकि मैं यूज टू हो जाऊँ, मेरी बॉडी लाइक उस तरीके से हो जाए। फिर लाइक 6 महीने मैंने कहीं और करा था जिम, फिर 6 महीने बाद मेरे भैया के साथ करा था, तो फिर हम सेम जिम आना शुरू हो गए थे। तो फिर जब मैंने शुरू करा, आई वाज अंडर हिम, ही ओनली गाइड मी कि ये ले ले, ये वाला, ये सब कर ले। तो स्टीरॉइड्स पे तो कोई नहीं करता। स्टेरॉइड कभी नहीं होगा। स्टेरॉइड लाइक अच्छी चीज़ बेसिकली नहीं है, क्योंकि इंटरनली बॉडी को बहुत ख़राब करती है। बाहर से तो बॉडी आप कितनी भी अच्छी दिखा लो, फिर एक पर्टिकुलर एज आ जाती है जब, तो फिर तब बॉडी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बहुत लोग डिटॉक्स भी कराते हैं, वो एक आपने देखा होगा, अपनी बैक पे कप्स लगवा लेते हैं, Okay. तो वो डिटॉक्स के लिए ही होता है। बट वो लाइक एक बार स्टेरॉइड अंदर चले गए शॉर्ट तो बात है, खराब साइड करती इफेक्ट क्या है। होते हैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग के ना टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, इट्स समवेयर अराउंड 600 to 700 हार्मोन्स, टेस्टो हार्मोन्स, ठीक है। और जब हम स्टीरॉइड्स इंटेक करते हैं, दैट इवेंचुअली इंक्रीज टू ट्वाइस साइज ऑफ दैट
सो वो 700 से इंक्रीज करके 2025 तक 2500 तक जाता है। एंड उसका आउटसोर्स जो होता है वो बाहर से होता है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी नहीं बना रही है, जब तक वो मिल रहा है तुम्हें बाहर से, तब तक तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग स्टीरॉइड्स, उसको आदत लग चुकी होती है 2000-2500 बनाने की, लेकिन जब वो लेना बंद कर दोगे तुम, तब कहाँ से आएगा? बॉडी कैपेसिटी तो ऑब्वियसली 600-700 तक ही है यार। तब क्या होता है, जो 600-700 की बॉडी बना रही होती है ना, वही बंद हो जाता है, और तब आगे जाके दिक्कत आती है रिप्रोडक्शन में एंड ऑल, ठीक है। तो उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ। It's fine. Yeah, but we get to know that steroids are really bad, and that's the main effect we can say. Steroids are very bad, but और तुम्हें कंपटीशन में भी लड़ना है। Fitness, our goal is fitness, not to win some sort of competition. शर्ट पे काला करनी चाहिए बस, पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए, उतना ही होना चाहिए यार। साइज बड़ा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा नहीं। Okay, that's good. So, जो प्रोफेशन है उसका भी अलग रूल है, उसके अलग बाउंड्रीज है, तो वो क्रॉस करोगे तो ऑब्वियसली होगा ना, हाँ मैं उससे। yeah. So right, with that, do's and don'ts for the beginners. Go to the we should listen to the trainer or not. What exercise you should do. Definitely you should work out under any guidance personal trainer, और I would recommend कि भाई स्टार्टिंग के डेज में आप नेचुरल डाइट पे ही ग्रो तो ज़्यादा बेटर है, because the more you gonna consume natural products, the more you gonna last. ठीक है। और सप्लीमेंटेशन के पीछे और स्टीरॉइड्स के पीछे तो बिल्कुल उड़ाओ। 3 महीने बाद तुम सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली ले सकते हो। वे प्रोटीन, क्रिएटिन से ग्रेट सोर्स ऑफ सप्लीमेंट, और BCAA, फिश ऑयल, या सो यू कैन गो फॉर दैट। बाकी वर्कआउट अपना किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में नहीं करना स्टार्टिंग में, बिकॉज नो वन गोना गाइड यू, इज द ओनली वन हु गोना टेल यू अबाउट द वर्कआउट एंड ऑल। तो कोई अच्छा ट्रेनर होगा उसके अंदर तो वर्कआउट करो, जस्ट फॉलो द। और लेट्स से अगर मैं बेसिक एवरेज साइन लेता हूँ कि हाँ अब रिजल्ट स्टार्ट हो सकते हैं इफ वी डू इट नेचुरल। ऑब्वियसली नेचुरल इज वेरी पॉसिबल, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक सप्लीमेंट तब कुछ पॉसिबल है बॉडी में, ऐसा नहीं है टाइम एवरेज टाइम घर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो आई टॉक अबाउट इट्स ऑल जीन्स पे ऑल depend डिपेंड अपॉन योर जीन्स एंड ऑल डिपेंड अपॉन योर डाइट। जैसे मैंने बोला 150 से 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो तुम वो नेचुरल अगर कंज्यूम कर सकते हो, तुम्हें सप्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है यार। बट द थिंग इज आई टॉक अबाउट पनीर, ठीक है। 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है? मैक्स 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, 100 ग्राम प्रोटीन पनीर में। और तुम दिन में 100 से 250 ग्राम कंज्यूम कर लो, ज़्यादा खाओगे तो वो भी काम करेगा यार। राजमा ले लोगे, मूंग दाल इज अ रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड करेंगे, सोयाबीन होगा, ये सोयाबीन अगर कंज्यूम में डेली, तो जो वाला है वो भी दिक्कत है। अगर तुम नेचुरली चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो तो इस वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ से बड़े बिजनेस वाले सप्लीमेंटेशन के पैसे बचेंगे यार। सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं। सप्लीमेंट्स भी बहुत महंगे, आज की डेट में तो बहुत महंगे हैं। इफ यू टू बाय अ प्रोटीन ऑफ 5 LBs, यू गोना easily gonna spend 7K for that, और वो 5 LBs एक महीने में नहीं चलता भाई। और हम जस्ट टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन, उसके बाद फिर तुम्हारा BCAA है, क्रिएटिन है, फिश ऑयल है, मल्टीविटामिन है। एक चीज़ होती है, देखो सीमेंट बनता है, सीमेंट में बहुत चीज़ डालनी पड़ती है, मलबा डालना पड़ता है, रोड़ी डालनी पड़ती है, तब जाकर अच्छी दीवार बनेगी तुम्हारी। और इसमें तुम सीमेंट में ले जाओगे तो भाई ठीक है। तो वे प्रोटीन के साथ में तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए। तो अगर इस टाइम मैं बोलूँ, मैं मंथली का ईजिली 15,000 to 20,000 बंदे का सप्लीमेंटेशन का खर्चा है, सिर्फ सप्लीमेंटेशन का। नॉट टॉकिंग अबाउट जिम फीस एंड ऑल, ठीक है। जिम फीस को ऐड ऑन कर लोगे तो आज के लिए जिम फीस भी बहुत महंगी है। तो फिटनेस इंडस्ट्री यार काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। स्टूडेंट के लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें मैनेज करनी। तो वो
नेचुरली अगर चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। आई वुड रिकमेंड दैट कि नेचुरल कर लो। That's really That's what nice. we take the advice. I want to know that personally as a girl I'm asking you and I've listened that somewhere कि हम जैसे ऐसे बहुत सारे supplements लेते हैं and it affects our skin like skin texture and acne and so on. You guys face acne, that? you talked about acne. Acne is a side effect of steroids, Okay, that's good. and it hurts as well. मतलब अगर आप उसे pinch करोगे अभी touch करोगे वो तो दुखता भी है। So have you faced that Then issue? you haven't taken steroid. Not about steroids. I'm talking about the skin issues. या skin issues यार पता है मेरी तो साफ हो गई है। till now मेरे को ऐसा ये कोई तो skin होता है कि issue more toxins are being Like, released. So yeah. that's the positive point. the more you're gonna sweat इतनी ज़्यादा skin quality हमारी improve होगी। Collagen भी I guess boost होता है. Collagen, yeah. Elasticity. And there's one supplement called fish oil. Okay. It is specially made for your betterment of skin quality. Yeah. स्किन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और ज़रूरी नहीं है कि यार फिटनेस में कोई बंदा है तो वही लेगा फिश ऑयल को। यू कैन कंज्यूम इट, एनीवन कैन कंज्यूम इट, कोई भी उसे डेली रूटीन में अपना ऐड ऑन कर सकता है और ट्रस्ट मी उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आप 1 महीना ट्राई करके देखो, आई कैन बेट ऑन यू कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं उससे। आपकी स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ग्लो करेगी स्किन सीरियसली। And did उसका कोई साइड sugar इफेक्ट नहीं है, इट्स ऑल नेचुरल। did sugar affect your workout? शुगर For sure. As in सोचना a पड़ता होगा cheat कुछ meal मीठा कि खाने तुम से खा पहले। रहे हो या नहीं, it हर affects. चीज़ एक लिमिट में हो सकती है। अगर आप ज़्यादा नमक कंज्यूम हाँ, करोगे तो it's वो भी true. अफेक्ट करेगा। फैट आता है, साइड फैट आता है। ज़्यादा शुगर लोगे वो भी अफेक्ट करेगा। तो हर चीज़ बैलेंस लेके So you चलिए। guys have to take care कि मैं खाऊं या ना खाऊं. You have to हाँ, और think पता है- before that. अच्छा वैसे एक छोटा सा एक फन टॉपिक जैसे एक होता है ना चीट मील उसके ऊपर कुछ मैं अभी चीट मील लेके आया हूँ। सो आप रोज़ ही होता है। रोज़ ही होता है? ऐसा नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री में। क्या है, आप ना यू कैन बी ऑन डाइट ऑफ 12 मंथ्स। Okay. एक फेज आता है कि आपको डाइट की जरूरत है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन गोल्स की। भाई तुम्हारी गोल्स क्या है, यू वांट टू गेन, यू वांट टू लीन। इफ यू वांट टू गेन तो भाई चीट मील एक नहीं कह सकते, उसमें 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो फिर आप क्योंकि उसमें भी पेट बढ़ाना है। इसमें वेट बढ़ाना है, मैं फैट भी नहीं देखना भाई मैं फैट चढ़ रहा बॉडी में। फैट तो यार कट जाएगा बाद में आके, लेकिन अगर आपको गेन करना है तो आपको चीट मील लेनी पड़ेगी। चीट मील आई मीन हाई इन कार्ब्स, ठीक है। तो उसमें फैट अगर हाई इन कार्ब्स होगा तो ऑब्वियसली फैट परसेंटेज भी ऑब्वियसली उसमें हो ही होगा। बट इफ़ यू वांट टू गो ऑन लीन डाइट, हाँ तब आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि भाई कार्ब्स इंटेक हमारी ज़्यादा ना हो, फ्राइड बिल्कुल बंद। एंड द मोर क्लीन यू गोना ईट, द मोर क्लीन योर स्किन। Yeah, that's true. That's literally true. इसके ये बेसिकली मैं तो एक ही चीज़ करता हूँ। अगर कहीं जाना होता है घूमने, like बाहर कहीं, तो 1 महीने पहले थोड़ी डाइट लेनी शुरू करता हूँ। तो थोड़ा शरीर It's ठीक हो like जाता है। कि तुम हेल्दी नहीं हो सकते हो जब तक अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन ना हो. बॉडी को देखो, सब चीज़ जरूरी है। नहीं। Yeah, सब आप चीज़ जरूरी 12 महीने डाइट में नहीं रह सकते। डाइट में रहोगे यार, पता है जो लीन बॉडी होती है ना, वो सिर्फ शर्ट उतरने के बाद अच्छी लगती है। आपको फैक्ट्स बता दूं, वो सिर्फ शर्ट उतरने के बाद अच्छी लगती है, और शर्ट उतरने के बाद शर्ट पहनना किसको पता है तुम्हारे 6 पैक्स हैं, बताओ। So बहुत informative questions हो गए. I want to know what are your favorite exercises that you love to do. कि हाँ मुझसे कभी भी करा लो. I love that. I love 3 exercises: deadlift, Okay. squats, and bench press. Can you tell us like some थोड़ा सा about that? थोड़ा सा informative. मेरा स्क्वाट है बेसिकली और लेग वर्कआउट। मतलब ये तीनों एक्सरसाइज जो मैंने बताई ना, अगर आप तीनों एक्सरसाइज ही कर रहे हो ना, आपकी मसल गेन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है तीनों: डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। तीनों में आपकी पूरी बॉडी कवर कर रही है, ग्लूट से लेके एब्डोमेन से लेके लेग्स, बैक, ऑल ओवर बॉडी वर्कआउट है। अगर आप इसे एज अ पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट भी है ये, इसमें 3 वैरायटी होती हैं: डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। और आई वुड रिकमेंड कि कुछ लोग ना स्किप करते हैं बेसिकली स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। Okay. हाँ कुछ लोग ऐसा होते हाँ, हैं. क्योंकि डेडलिफ्ट में कहते हैं यार इंजरी के चांसेस बहुत हैं, स्क्वाट्स से तो वैसे ही बहुत लोग डरते हैं, लेग डे तो भी नहीं करता। करता हूँ मैं, आपके साथ ही करता हूँ। जैसे अभी आपने इंजरी
इंजरीज का बोला, जैसे कुछ तो डर होते हैं ना कि कोई इंजरी से उसके लिए आप माइंडसेट क्या होता है? जैसे कभी कोई अगर आप ये करोगे चीज, अगर आपको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज देंगे, अगर कि मेरी फॉर्म, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, अगर आपकी गाइडेंस अच्छी होगी, आपको अच्छे से गाइड करा जाए कि भाई इसकी फॉर्म ये है, इस एक्सरसाइज की फॉर्म ये है, तो यार इंजरीज के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी कम रहेंगे। बट अगर बंदे को बेगर कुछ पता है, उसको वो ट्रेन कर रहा है रेगुलरली, आज नहीं तो कल आपकी इंजरी डेफिनेटली होगी। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एक्सरसाइज, इफ यू टू डू हाउ टू परफॉर्म दैट इन द जिम। तो But- फिर सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेट्स से कि मैं सपोज दिन चाहता हूँ एंड आई एम अ बिगिनर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हाउ वुड आई नो कि ये गाइडेंस अच्छी देता है या फिर ये अच्छी नहीं देंगे? इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। Trust is the most important It's kind factor. of a losing game then. Yeah, I agree. It's all about trust. But और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि you are just going to get the guidance from the trainer. There are plenty of platforms available at the social media. Like Instagram पे भी आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल तो ऑब्वियसली है ही। And there's some YouTube channel as well. I would recommend कि गौरव तनेजा fitness influencer is a very good fitness influencer. आप उसकी वीडियोस फॉलो करोगे। कौन सी? गौरव तनेजा। गौरव तनेजा, अच्छा। फिट फैसिलिटी बेसिकली, मतलब इफ एट अबाउट फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई गोना रिकमेंड हिम कि आप उसकी वीडियोस चेक करो। वो आपको न्यूट्रिशन से लेके वर्कआउट से लेके हर चीज़ का फिटनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दे देगा और काफ़ी जेन्युइन है उसकी। एक है साकेत गोखले, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड बंदा है वो फिटनेस इंडस्ट्री में। उसका इंस्टा चेक करना, आपको कुछ पता चल जाएगा। नो चीट मील, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अपनी डाइट लेता है, सब कुछ उसका प्रॉपर है। अभी उसने एक अपना शूट करा था जिसलिए ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट शूट, तो बिफोर दैट शूट उसने एक भी लाइक चीट नहीं करा, बिल्कुल प्रॉपरली करा। ही वॉज ऑन कट, तो आफ्टर दैट शूट आपको बल्क पे है। तो अगर आप चेकआउट ज़रूर करना, अगर आप जिम शुरू कर रहे हो, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं वहीं पे, मैं भी वही देखता हूँ। वही है, जब आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में कैसे करूँ, मैं भी जब मैंने जिम स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू एक्सप्लोर अ लॉट। मतलब यूट्यूब पे मेरा भरा रहता था कि भाई तब न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, हाउ टू कंज्यूम दिस एंड ऑल। मतलब मैं ढूंढता रहता था यार, मैं वर्कआउट भी ढूंढता रहता था। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ मैं 2 साल मैंने ट्रेनर का वर्कआउट कराया, उसके बाद मैंने कभी ट्रेनर का वर्कआउट नहीं करा, और उसके बाद मैंने ट्रेन कराई है बस। From a female perspective, I want to know if I am going to gym, what are the do's and don'ts I should consider for me as a female? डूज एंड डोंट्स की फीमेल की बॉडी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ मेल बॉडी। ठीक है, तो यू शुड बेसिकली आपको ना मसल बिल्ड पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज इफ यू वांट टू फोकस ऑन मसल बिल्ड, तो यार That will be little, cards. yeah exactly, and you're gonna look something Some muscular ऐसा होगा. and eventually you will not gonna like yourself. Yeah. मेरे को क्या देखो, I would recommend कि girls को भी फिटनेस if they want to maintain it themselves, well and good, but हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि if they are gaining some muscles, if girl is gaining some muscle, तो they are थोड़ा not going to ashamed and yeah something exactly. they do that. They will Until not unless you want to really gain. participate in any fitness competition and all, मतलब there are plenty of competition of where girls are participating, and I really appreciate a lot the girls who are preparing for that competition. मतलब काफ़ी मेरी फ्रेंड है शिवानी गुप्ता, आपने नाम सुना होगा, शी इज हैविंग अराउंड 3 million फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, और आई गेस शी इज़ अ इंडियन वीकली चैम्पियन। मुझे उसका कॉम्पिटिशन का नाम एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मतलब काफ़ी अच्छी फिजिक है उसकी, आपको फिजिक देख लोगे, मैं कह रहा हूँ इसका भी पैसा छोटा है उससे। So what are the exercise you will recommend me as a female that I'm going to do? Gym ki हाँ you should do this and you should not do that. फीमेल के लिए आई गोना रिकमेंड कि लोअर बॉडी पे थोड़ा फोकस करें।
एक्चुअली मैंने जितना नोटिस करा है और सुना जितना है बेसिकली जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर लेग्स ही मारती हैं। नहीं सी नोटिस तो यही हुआ है। यार देखो तुम भी बोलते हो तुम भी बोलते हो। क्योंकि यार फीमेल में ना अपर बॉडी का इतना रोल नहीं है। अपर बॉडी में उनका अगर हफ्ते में 2 दिन में ट्रेन करते हैं ना, दैट इज इनफ फॉर देम। उनको कार्डियो और लोअर बॉडी का ही वर्कआउट है उनका। बट आई पर्सनली थिंक कि फॉर फीमेल बैक स्ट्रेंथ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नहीं, आप डेडलिफ्ट करोगे और स्क्वाट्स करोगे तो ऑब्वियसली आपका बैक स्ट्रेंथ बना इम्प्रूव। और सी आई टॉक अबाउट बैक डेडलिफ्ट और बैक स्क्वाट सॉरी, तो उसमें ओवरऑल तुम्हारी बॉडी ओवरऑल कवर होगी यार। स्पेशली अगर स्क्वाट्स में तो लेग्स स्पेशली लेग्स कवर नहीं होता, तुम्हारी एब्स भी आ रहे हैं, तुम्हारा ग्लूट्स भी आ रहे हैं, लोअर बैक भी आ रही है, तो मतलब इट्स अ वर्कआउट ऑफ योर होल बॉडी। Thank you so much, both of you. It was very informative and it was very much nice. डिस्कशन भी था। And probably with that, I know exactly what to do and what not to do. Yeah. So really, thank you for that. We get to know a lot about more. So the last thing I want you to say is, I want you कि आप अपने please थोड़ा सा perspective बताओ कि is gym the only thing for fitness? You think that or what fitness is to you? I want to know. फिटनेस इज लाइक यार तुम अपने लिए कर रहे हो बेसिकली। ये मत सोच के करना कि मेरी मोटिवेशन अलग थी तो उसको थोड़ा साइड रखेंगे। ये मत सोच के करना कि तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो कुछ। तुम अपने लिए कर रहे हो जिम, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी बॉडी के लिए। एंड ऑफ कोर्स अब जैसे बताया कि माइंड फ्रेश रहता है सब कुछ, तो अकॉर्डिंग टू मी दिन का 1 घंटा 1-1.5 घंटा जिम जाना चाहिए, ज़रूर चाहिए। तुम स्किप मत करो। डेफिनेटली वो पता है जिम इज नॉट द ओनली वे ऑफ गेटिंग फिट। यार तुम इजीली किसी भी पार्क जाके वर्कआउट कर सकते हो। रनिंग रनिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। Right, Raghav? रनिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं। मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं जिम से पहले अब तो जिम देखो, अगर जिम करोगे तो आपको रनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज यू वांट टू लूज योरसेल्फ, लूज सम मसल इफ यू वांट टू रन डेली। बट अगर रनिंग आप कर रहे हो रोज, जो स्ट्रेंथ और फिटनेस आपकी रहेगी वो जिम नहीं देगा। ये मतलब कैलिस्थेनिक्स है उसकी, अगर आप वो चलो तो चीज़ ही अलग है, उससे हर किसी के बस की बात नहीं है वो करना। बट उनकी फिटनेस लेवल इज अनमैचेबल, सीरियसली था। तो जिम इज नॉट द ओनली थिंग वेयर यू कैन गेट फिट। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। यू कैन डू एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्विमिंग इज अमेजिंग। तो काफ़ी ऑप्शन है यार, जो आपको सूट करता है, प्रेफरेबल है, अब वो करो, किसी भी इच्छा ना। अगर मैं रनिंग स्टार्ट कर दूँ then say ये स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल। हाँ मतलब इट्स ऑन योर गोल्स। आई लव गोल। I need to be fit. If I start right now running, I know that I want to lose more weight. And probably as per BMI and all that, I am under. So because I should You should start working on the gym. gain 10. Yeah. Okay. Thank you all, and I really appreciate your time. Right. So about fitness talks. उदित हमसे बात कर रहा है ना, तो तू वहां किसको गोल गोल घूमना तुम लोग। कितना अच्छा वो मैं लेट्स फिक्स ourselves. Probably it's like, what do we need? और 1 सेकंड ये डिस्कस So about fit. पास्ट में चले गए क्या? चेक कर लिया आपको तो बता दें। भाई किसी को पड़ रहा। अपने गेस्ट बुला लो। ये तो हम हैप्पीनेस वाले क्लास में भी कर सकते थे
कितना लेकिन यहाँ पे अच्छा है, अभी कोई हैवी नहीं बोलने वाला। हाँ हम तो रात उसके को लिए किसी गेस्ट को तो बुला लो भाई, जिम क्या गया है है Yes. अबे गेस्ट फोन तो उठा ले डाले तुम्हारे गेस्ट ने फोन नहीं उठाया? स्टार्ट करें हाँ तू शुरू करने वाली वो थी नहीं बोला, चल छोड़ दे। मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ स्क्रिप्ट साइड में लिखे थे Start. So, welcome Ram and welcome Dhruv. Can you please introduce yourself? कर भाई एक सेकंड चलो।